So, good afternoon, friends. On behalf of Chemistry Department, I welcome you in this very important course, that is Fundamental Chemistry Part 2. I am really very happy to discuss some of the important aspects of chemistry to the new student, because generally we do teach here MSc students and of course PhD students, and you are the member of very important course of Government of India that is called Integrated Teacher Education Program. And first time, frankly speaking, after a long gap, 35 years, I am teaching the BSc students, and moreover, you are all BSc, B.Ed students, and as I have already discussed with your director, Professor Agase, that you are the future teacher. So therefore, teaching is very, very important, and in order to become a very good teacher, it is very important to learn the fundamental aspects. I just want to know that about your languages. So, how many students are with English background? So, and Hindi medium students? Only 2. So, what do you want? Should I continue in English or I can use the mixed language like that? Mixed language. Whenever I have gone through your syllabi, I have seen it is very simple. I don't have any idea about your first semester course. But as you know that this fundamental chemistry is comprises of some elementary idea about the organic chemistry as well as physical chemistry. First thing is that there are 4 units. इसमें 4 यूनिट है, और what I am planning in our chemistry department, there are 7 teachers. They are very senior teachers. So what I will do that I have given some of the course to my colleagues also. So basically, let me first explain that मैं क्या आपसे डिस्कस करूंगा. ओके, सो फर्स्ट यूनिट मैंने देखा इसमें एसिड एंड बेस कंसेप्ट है. एसिड एंड बेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल ऑल्सो, और स्कूल लेवल से आप लोग एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हो. जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा, कैन यू टेल मी द pKa ऑफ वाटर. वाटर सबसे सिंपल चीज है, हो सकता है आप इसका मेरे को उत्तर दे पाएंगे. या अगर मैं आपसे पूछूं pKSH प्लस ऑफ उसका कॉन्जुगेट ऑफ वाटर, हो सकता है आप उत्तर दे पाएंगे. दूसरा यूनिट है इसमें थोड़ा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग है, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें. थर्ड यूनिट है आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस. Kinetic theory you can call it. Now, I am concerned, basically I am a physical chemist, and my name is, as you know, my Professor Kallol Ghosh, and for the last 40 years I have been teaching the MSc students, and I am going to retire in October. मैं जो आपको पढ़ाऊंगा that is the 4th unit का कुछ
पार्ट पढ़ाऊंगा। फोर्थ यूनिट को मैं आई कैन कॉल इट इज ए फिजिकल केमिस्ट्री। बेसिकली व्हाई आई एम कॉलिंग इज ए फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज there are three parts, as I have already seen. Colloids आप लोग बहुत सालों से नाम जानते हैं, colloids केमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। सो व्हाट इज द, बिकॉज मैं जैसे बार बार आप बैठ सकते हो, जैसा आई एम टॉकिंग यू दैट यू विल बिकम ए टीचर. So teaching methodology is very important, which is called the pedagogy. So whenever you start a class, you must tell what is the course content. पहला प्रश्न ये होता है कि हम बच्चे को बताएं कि आपको उस कोर्स में क्या पढ़ना है. फिर हम सेकेंड कंसेप्ट में जाते हैं, what is the importance of all these topics. Tell some story and other things. And third objective, although I don't have any experience about the school teaching, then books are very important. Like school level, there are NCERT books and other things. Like university level, there are different types of books. So books are very important. And now there are different online courses, MOOC courses. ये भी आप धीरे धीरे आप जानेंगे, आप क्योंकि स्कूल से आए हैं. So therefore, Dr. Indrapal Kharwal, you will teach you the organic chemistry and his team. What I am planning that suppose I am a senior professor and some research scholars are doing PhD under my guidance, so some of the topic will be covered by my students also. But basically I think I will take one class in a week. एक क्लास तो मैं जरूर लूँगा if time है. तो मैं आज आपको कॉन्सेंट्रेट करूँगा केमिकल काइनेटिक्स. So there are 4 units and there are sub units A, B, C, D. So my contribution, अर्थात मैं आपको केवल एक यूनिट में कॉन्सेंट्रेट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे पहले केमिस्ट्री का कंसेप्ट आज आपको बताऊंगा उस यूनिट का. फिर मैं आपके कोर्स के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा. बिकॉज नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू सी द टाइटल इज फंडामेंटल केमिस्ट्री एंड इफ फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज वेरी एसेंशियल. सम मैथमेटिकल डेरिवेशंस इज ऑल्सो देयर. इसमें हो सकता है आपके बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी के भी है बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी हैं. तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको डेरिवेशन बहुत आसान लगेगा. जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा हो सकता है कठिन लगेगा. बट मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज बायोलॉजी. ओके, सो लेट मी कन्फाइंड अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स. अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. ठीक है, आपने स्कूल लेवल में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द केमिकल काइनेटिक्स, बट हियर मुझे बताया गया क्योंकि आप लोग स्कूल से आए हैं, मैं कोशिश करूँगा. बट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड सो यू आर फील फ्री टू इंटरप्ट मी एनी टाइम, बिकॉज यू नो देयर इज ए गैप. हम लोग MSc को पढ़ाते हैं, रिसर्च को पढ़ाते हैं, और आप एकदम स्कूल लेवल से आए. बट यू आर ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई थिंक दैट. तो जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, इफ़ यू आर अनएबल टू, सो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन. सो इन हिंदी केमिकल काइनेटिक्स मीन्स समटाइम्स वी कॉल इट रासायनिक बल गतिकी. तो फॉरगेट अबाउट ऑल दोज डेफिनेशन. सो बीइंग ए केमिस्ट, सपोज आई एम ए केमिस्ट and I want to study one transformation. A is converted into B. This is the first question, first point. I am not saying any type of transformation. Like in biological system, photosynthesis is also a transformation. Or sometimes, you know, conversion of ATP to ADP is also a transformation. So such type of transformation, being a chemist, I have to understand how can I study this type of transformation. मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है
इसको मैं कैसे देखूंगा? सो आप ऐसा बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी सम प्रिंसिपल्स, देयर मस्ट बी सम थ्योरी. सो theory of underlying basic principle that govern the properties and behavior of this system. जैसा मैं, आई डू नॉट नो योर नेम, मैं नहीं जानता हूं आपके बारे में, लेकिन आपको देख के मैं बता सकता हूं कि आपका हाइट क्या है, आप कैसे हेल्दी है कि क्या है. बट इफ आई वांट टू नो योर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, तो आपके साथ मेरे को और इंटरेक्शन करना पड़ेगा. सो इन केमिस्ट्री देयर आर सम प्रिंसिपल, theory of underlying basic principle that govern the properties and behavior of a system. मतलब मैं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम भी हो सकता है, एनवायरमेंटल सिस्टम भी हो सकता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है. सो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो थैंक्स केमिस्ट्री, how do I study this transformation? Abhi, as I have already told you, that either by microscopic properties, आपको घर जाना पड़ेगा, आपके में इनके घर जाना पड़ेगा, मेरे को 5 दिन रहना पड़ेगा, तो पता चलेगा कितना बजे उठता है, क्या कैसा करते हैं. एनादर दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, बाल्क प्रॉपर्टीज. यहाँ बैठ रहा है, रोज क्लास ले रहा है, चुपचाप अच्छे से सुन रहा है, सो नहीं रहा है क्लास में, दैट्स गुड. सो दैट इज कॉल्ड दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. एंड देयर मस्ट बी अ लिंक between the microscopic properties and the macroscopic properties. Now in chemistry, now you can understand the things. Microscopic properties means electron, proton, neutrons and other things. And that the science behind these microscopic properties is called the quantum mechanics. ये सब नहीं पढ़ना है आपको, मैं जस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. And macroscopic properties, which is very important, bulk properties, energy and other things, ability to do the work, that is called the thermodynamics. हो सकता है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़े हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ, अच्छा अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे. तो दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स. feasibility of the reactions. And there is a change between thermodynamics. अब सवाल ये उठता है कि आप केमिस्ट बन गए, आपको एक अमोनिया का फैक्ट्री दें, N2 + thrice H2 twice NH3. You have to go to Raipur to Drug. You know the road, but you don't know the distance. You know, yes, I can go to the Drug by साइकिल 2 घंटा लगेगा, कार मे बी 30 मिनट्स, एरोप्लेन मे बी 15 मिनट्स, बट यू नो दैट द कंडीशन. सो थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस द feasibility of a reaction. That means reaction is possible or not. Conditions. You know Haber process, high temperature or low pressure or whatever is the concentration. But unless until you know the path of the reaction, your program will not be successful. मतलब अगर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा वो जानना अलग चीज होता है. दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, बट अगर आप यू डोंट नो द रूट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन, सो नथिंग विल बी हैपेंड. एंड दैट रूट, that means time required for completion of the reactions and the different pathways of that in between Raipur to Drug, there may be Kumari, there may be some flyover, there may be straight road and other things, the condition, that science
is called chemical kinetics, which is very, very important in chemistry, chemical kinetics. So today, first thing is that theory of underlying basic principle, that properties and behavior of a system. As a chemist, I have full right to understand the transformation. Unfortunately, when there is a transformation, sometimes what happens, suppose there is a colorless solution, after reaction, suppose there is a color, तो आप देख के बोल सकते हैं कि ये कलरलेस से लाल हो गया, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. कैसे आपने देखा? देयर इज ए चेंज इन कलर. आपने देखा एक बड़े साइज का मटेरियल है, वो नहीं दिख रहा है, देख शेप देख के आप बता पा रहे हैं. बट सपोज दिस सॉल्यूशंस आर कलरलेस, सो हाउ डू यू नो? So either you monitor the concentration of the reactant or monitor the concentration of the product. So there may be some change in physical properties, maybe change in conductance, maybe change in any optical properties and other things. So that is comes under the chemistry of carbon compounds, oxygen and other things. So in chemical kinetics, मतलब ये जो आपके कोर्स में जो है chemical kinetics, उसमें हम देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को how do we study this type of transformation. I am not discuss with the quantum mechanics or thermodynamics, because that is a fundamental of chemistry, because it is a 4-year integrated course. You will become BSc, B.Ed, so gradually you will understand the chemistry. And one thing is important, in MSc also we are teaching chemical kinetics. In school level also you have स्टडीड दी केमिकल काइनेटिक्स, आप सब रेट लॉ वगैरह सब पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग लगेगा. तो दैट इज़ दी स्टेप वाइज सिस्टम. स्कूल में भी आप केमिकल, मैं समझ तो क्लास 8 से आप पढ़ रहे हो केमिकल काइनेटिक्स. छोटे छोटे रिएक्शन आप करते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू नो, मॉलिकुलरिटी यू नो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू ऑल नो, बट यू सी द डिफरेंस. तो लेट मी समराइज. Today I will discuss the fundamental of chemical kinetics. मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या रिएक्शन हो रहा है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स. कितना समय लगेगा? अगर आपने एक फैक्ट्री लगाया और आपने 1 साल लग गया अमोनिया बनाने में, तो आपका तो बंटाधार हो जाएगा. तो यू मस्ट नो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस. आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन डाउन हो गया. सो यू मस्ट नो द कंडीशंस ऑल्सो. दैट इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स. अब लेट मी गिव द एग्जाम्पल. कैसे? अब मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लिखता हूं. C6H5, what is the name of this compound? C6H5NH2. Very good. Aniline सब जानते हैं. It is a reactant, plus hydrogen plus नाइट्रस HNO2. मतलब आप A और B को यू ऑलवेज कंसीडर दिस थिंग्स. बट नाउ आई एम प्रोसीडिंग दी स्टेप्स. सो देयर मस्ट बी सम रिएक्शन. ब्रोमाइड आयंस, सपोज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ C6H. मैं इजी में भी आ जाऊंगा, आप घबराइए मत. आप लोग सोचेंगे पहले ही मैं अगर कठिन एग्जाम्पल लिख दूंगा तो आपको कंफ्यूजन है. चलिए मैं इजी में आ जाता हूं. H2 प्लस Br2, वेरी इजी, इज इक्वल टू 2HBr. अगेन यू जस्ट कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन.
नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं ना, रिएक्टेंट बोलेंगे कि नहीं इसको, रिएक्टेंट ENT. एंड व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? वेरी गुड, प्रोडक्ट. यहां तक तो सब लोग जानते हैं, एवरीवेयर. चलिए और इजी में आ जाता हूं. H2 half O2. Another example. सब आपके कोर्स में है CH3CO. हो सकता है इसका नाम आप नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूं. दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनाइल एसीटेट. +1 any type of nucleophile. And there is a और यहाँ से पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बनेगा. Another very simple example I can write K2S2O8. What is the name of this compound? Potassium persulfate. Potassium persulfate plus मान लो Ki के साथ रिएक्शन, पोटासियम आयोडाइड. यू नो ऑल दिस थिंग. 2K2SO4 प्लस I2. 2 नहीं होगा, घबराइए मत, मैं सिंपल एग्जांपल में आ जाऊंगा. एंड इन योर कोर्स एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन इज ऑल्सो देयर. मान लो एक मैं और रिएक्शन लिखता हूं. CH3CO CH2N प्लस CH3 प्लस एक वाटर. कोई इसका नाम जानते हैं? CH3CO CH2 CH3. दिस इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन. इसमें बायोलॉजी के कौन स्टूडेंट है? बायोलॉजी. व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं? यू नो, बट दैट इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम. So if I want to hydrolyze that acetylcholine, I need an enzyme. आपके कोर्स में, इसलिए कोर्स का बात कर रहा हूं. ACHE. चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, कैमरा इनकी तरफ दीजिएगा. ये मैं थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल लिखा हूं जो आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़े होंगे. एग्रीड और नॉट? मतलब मैं जानबूझ के मैं कुछ कठिन भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ जो आपके कोर्स में आपने स्कूल में नहीं पढ़े होंगे. अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि अब आप एक ऐसा सिंपल एग्जाम्पल मेरे को केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बताइए जो आप स्कूल में पढ़े हो, एनीबडी, क्योंकि आपको सीखना है. डू आई मेक माई पॉइंट क्लियर और नॉट? I am giving some example. That is a transformation. Some are biological reaction, enzyme reactions. You told that is a neuron. It passes the signal to our brain, and one enzyme is responsible because enzyme catalysis reaction is in a course. I have also written one reaction H2 plus Br2, which is called the chain reaction. And I have also written very simple reaction. But now I just want to know from you that आप इन स्टूडेंट में से कोई एक सिंपल रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सर आप ये मत बताइए, आप मेरे को एक सिंपल रिएक्शन बताइए. बताओ भाई, आप नाम बताइए पहले अपना. दीपिका कुमारी साहू. कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से? उड़ीसा से? उड़ीसा से कहाँ से आए? गंजाम डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बैरामपुर, है ना. तो आप बताइए स्कूल में जो पढ़े हैं.
काइनेटिक्स में। हाँ वो बोलिए, घबराइए नहीं, ये तो हम सिखा रहे हैं आपको। कोई भी एक रिएक्शन। हाँ, मिथाइल एसीटेट कितने कितने लोगों ने जाना है? हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज C12H22O11, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, कोई जानता है? अरे मिथाइल एसीटेट तो पढ़े होंगे स्कूल में, फॉर्मूला जानते हैं मिथाइल एसीटेट का? चलो आप नहीं जानते हैं। अरे ये तो सब लोगों ने पढ़े हैं, मैं समझता हूँ ये तो स्कूल लेवल का है। CH3COCH3 प्लस H3O पॉजिटिव, एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल। एनीवे, इसका मतलब आप लोग अभी थोड़ा तैयारी ठीक से नहीं किया है, इसका मतलब है। चलो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस नॉनसेंस थिंग दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, भाई कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब वाई आई हैव रिटन ऑल दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस, बिकॉज आई एम लर्निंग केमिस्ट्री, and I told you just 5 minutes ago that it is a chemical transformation and I have to study the properties and behavior of those systems. So what should I do? First thing, either I will monitor the concentration of this para-nitrophenyl acetate by any method. Method इसके बाद आपके कोर्स में है ना, methods or the determination. Number 2, if I am unable to determine the concentration of phenyl acetate, सांद्रता, भाई ये हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ये टूट गया, दूसरा कंपाउंड बना, तो हो सकता है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो या तो हम जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को नापेंगे या हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को नापेंगे, या हम इसके वेलोसिटी को, आप दौड़ रहे हो एकदम जोर से, आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं ना आपके अगासी साहब, तो कोई नापने का तरीका होता है ना, कौन कितना जोर से दौड़ रहा है, स्पीड एंड अदर थिंग्स, वेलोसिटी। तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होते होते, इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो हो सकता है आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये there will be no methyl acetate, no परसल्फेट, पोटासियम परसल्फेट, no aniline, aniline है ही नहीं, चला गया। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ये नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमको इन सारी रिएक्शंस का, देयर आर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस व्हेन यू स्टडी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो माई थिंकिंग इज दैट यू विल ऑल क्रेम ऑल दोस रिएक्शन। नो, आपको सीखना है, इसलिए मैंने फिर ए और बी को लिख रहा हूँ, मैं इतने सारे रिएक्शन को नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप पढ़ाने जाओगे तो आप अगर पढ़ाने गए और एक भी रिएक्शन नहीं लिखे तो होगा क्या बात? इसलिए मैं जानबूझ के हजारों रिएक्शन में से कुछ रिएक्शन को चूज़ किया। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपका कोर्स देखा तो मैं देखा उसमें कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए कुछ है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है आपके कोर्स में, देखिए एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। तो दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट इज एंजाइम, you should know one of the enzyme catalyzed reaction. I have written here one enzyme catalyzed reaction. फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है चेन रिएक्शंस। क्या लिखा हुआ है? चेन रिएक्शन। दैट मीन्स इनमें से एक एंजाइम का देखो मैं लिखा हूँ, एक मैं चेन रिएक्शन का लिखा हूँ, फिर उसमें लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो मैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखा। अभी आप लोग नहीं जानते हो सेकेंड, अभी मैं धीरे धीरे जाऊंगा ना, एक बार मैं सब चीज़ बता दूंगा तो नहीं होगा ना। मैं डू आई मेक माई पॉइंट क्लियर और नॉट? यू फॉलो माई पॉइंट्स ग्रेजुअली, आई एम जस्ट। सो नाउ फॉरगेट अबाउट ऑल दोज रिएक्शंस, भूल जाइए सारे रिएक्शंस को। बट ये बस याद रखिए कि देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन पार्ट इज रिएक्टेंट्स, अनदर पार्ट इज प्रोडक्ट. So you have full option, either you can monitor the concentration of reactants or concentration of product.
Okay, there are 50 students. After declaration of results, suppose 50 students will secure 80% marks, all cleared. तो मैं क्या बोलूँगा कि 100% रिजल्ट, और भगवान ऐसा ना करे 50%, 50 लड़के फेल हो गए, तो क्या रिजल्ट बोलेंगे? 0%। 25 लोग 80% पाए तो हम क्या बोलेंगे? 50% रिजल्ट. So that is the extent of your result. Similarly, I cannot say, if I ask me whether this reaction is complete or not, how do you say? जब पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या बोलोगे? रिएक्शन इज कंप्लीट. सो दिस इज नॉट ओवर, दिस इज कॉल्ड द ओवरऑल रिएक्शंस. देयर मे बी डिफरेंट स्टेप्स. तो मैं अभी आपको घबरा नहीं रहा हूँ कि आपको मैं स्टेप समझाऊंगा, आप घबरा जाएंगे. मैं आपको अब मैं आऊँगा कि मैं इनको कैसे स्टडी करूँगा. इसको आप जरूर लिख सकते हो. अब आप बोलेंगे व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डूइंग दिस video recording? Because I am a teacher, so I am collecting all these information from research papers, some good books. आप लोग तो स्कूल से आए हो, तो रिकॉर्डिंग जब हम इसको करते हैं, इसको फिर हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में मैं उसको डाल देता हूँ. कितने लोगों को मालूम है कि रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का वेबसाइट कितने लोग देखते हैं? www.prsuac.in. उसके फ्रंट पेज में एक देखिए वीडियो लेक्चर्स का जगह रहता है. आपको मान लो बायोलॉजी का लेक्चर देखना है, आपको केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है, आपको फिजिक्स का लेक्चर देखना है, तो वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. आप मैं तो पढ़ा के 1 घंटा चला गया, आपने लिखने में गलती कर गए, कई लोग नहीं लिखे, तो अगर आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग रहेगा तो आप घर में जाके भी उसको देख सकते हो. और नहीं तो अब आजकल आप जानते हो यूट्यूब होता है, मेरा आप नाम लिखोगे ना, ये सब नया मॉडर्न सिस्टम हो गया एजुकेशन का. कल्लोल कुमार घोष यूट्यूब, अभी शाम तक पता चल जाएगा आपको. तो आप देखेंगे, हो सकता है लिखा हुआ है इसे केमिकल काइनेटिक्स फॉर बीएड स्टूडेंट. तो आप क्लिक करके उसको देखोगे, तो आप अगर नोट ठीक से नहीं भी कर पाए वहाँ से कर लेंगे. अब समझ रहे हैं क्यों हम लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं. सिमिलरली फॉर एमएससी स्टूडेंट ऑल्सो वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ थिंग्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बिकॉज देयर आर मेनी एफिलेटेड कॉलेजेस, दे आर नॉट गेटिंग द नोट्स एंड अदर थिंग्स, एंड वी आर नॉट गिविंग एनी नोट्स सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम. आपको क्लास में अलर्ट रहना पड़ेगा, टेस्ट होगा, तो आपको यूट्यूब लेक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं. एनीवे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप मैं आ रहा हूँ. मैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया. अब इसको कैसे हम स्टडी करेंगे? व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन? क्योंकि अब फर्स्ट पार्ट इन योर कोर्स इज रेट ऑफ ए रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन. सो हाउ डू यू एक्सप्लेन द रेट और वेग और वट एवर इट इज? अभी तक तो मैं आपको कहानी बता दिया, अब मैं डेरिवेशन में जाऊंगा. जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट पास हो गए तो 100%. सो दैट इज कॉल्ड द झाई. चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, आपको आप घबरा जा रहे हैं, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ. ये तो लड़के याद रख सकते हैं. आप खुश हो गए, अरे सर बहुत अच्छा है, A+B+C+D. नो एनिलीन, नो पोटेशियम परसल्फेट, नो एसिटाइल कोलिन, नो मिथाइल एसिटेट, नो इथाइल एसिटेट. फॉरगेट. ओके, नंबर ऑफ मोल्स न्यू A, न्यू B, न्यू C, न्यू D. I am not writing any rate constant, nothing. Now my object is rate, RATE. Then rate constant में भी मैं जाऊंगा. Then वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक
Hindi is very difficult sometimes. रासायनिक बल गतिकी. So better to explain chemical kinetics is very easy. Rate constant is very easy. But if you take that Begg स्थिरांक, शून्य कोटि का अभिक्रिया, but zero order. Okay. Now there is a extent of the reaction. Extent of the reaction. Extent of the reaction. आज मैं बस इसी में कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि एक दिन में बहुत कठिन बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे आप. सो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज जाई. जाई हिंदी में 6 जैसा दिख रहा है. इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल नोटेशन जाई इज इक्वल टू Ni xi minus Ni0 divided by nu I. अब मैं आ रहा हूँ. What is that? Whenever there is a transformation, you know the number of moles and other things. You know that 1 mole of potassium persulfate or 1 mole of methyl acetate is converted into some mole of acetic acid, some mole of methanol, like that. So the extent of reaction means the number of moles of reactants, number of moles of reactants or product when extent of reaction is there, and in zero matlab means there is no change. And this nu I is the number of moles of balanced, ये एकदम याद रखिए, balanced chemical reaction. The reaction must be balanced. And the condition is that, जैसे balanced है ना, ये जैसे ये balanced है, आप समझते हैं ना, जैसे N2 plus thrice H2 is equal to twice NH3. It is balanced chemical reactions. So number of moles of the reactants or products of the balanced chemical reaction, and it is positive for product and negative for reactant. आप आसानी से समझ सकते हो कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कि घटेगा. तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं. और अभिकारक रिएक्टेंट घटेगा इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव. ये समझ में आया कि नहीं आया? नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन द रेट ऑफ ए रिएक्शन? रेट, बेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. देखो यहाँ इसमें एकदम फंडामेंटल से मैं शुरू कर रहा हूँ. अभी मैं क्या आपको कर रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन समय के साथ जो परिवर्तन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज रेट, बेग. जैसा आप मिथाइल एसीटेट धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एसिटिक एसिड और मिथेनॉल में, तो वो समय के साथ जो कन्वर्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेग. सो क्या मैं लिखा हूं यहाँ पे, इसको डेरिवेटिव आप जानते हैं जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इज स्कूल लेवल. सो यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं क्या लिखूंगा, डी ऑफ Ni, डी ऑफ T and nu I. You follow this point or not? This is the number of moles. Number of moles. I think you have studied in your school level what is mole concept. Say for example,
When you do some experiment, आपने मेरे लैब में आए हैं, मैं आपको बोला go and prepare 1 mole of sodium hydroxide, और एक स्टूडेंट को बोला go and prepare 1 molar sodium hydroxide, कौन सा इजी पड़ेगा आपके लिए? 1 molar easy है, 18 ग्राम divided by molecular weight, whatever the system. So in order to convert it in molar terms, molar, it is mole. So if I consider I is the mole, and that is actually molar volume is Ni upon capital V is the molar volume. It is molar concentration, it is mole. So what I can write, so change in di dt is equal to dni dt and v, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ काइनेटिक्स. फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर आज एक दिन में बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो आपको फिर थोड़ा होमवर्क दूंगा आपको, फिर आपको समझ में आएगा. सो फर्स्ट आई एम गेटिंग द डी आई dt t is equal to dni upon dt by v. So I have to substitute the value of this part from mole to molar. Mole to molar. Here is also dni by dt. So dni by dt is equal to what is there? This is actually d I dt and v. So rate of reaction is equal to, in place of dni we can write di molar concentration, dt v and nu I. And V is always constant. So generally we can write rate of reaction is again YOLO in terms of YOLO. So like that. So if I आपको मैं बोलूँ N2 plus thrice H2 का लिखो भाई, रेट लिखो. कैसे लिखेंगे आप? d by N2 dt. Should I write minus or plus? Because here it is a reactant, so minus. Then I should write d by dt of H2 1 by 3. 1 by, it is also minus. फिर हम क्या लिखेंगे? आप भी लिख सकते, ये प्लस लिखेंगे ना, डी वाई डी टी ऑफ NH3. ये देखिए 2 कहाँ से आ गया? स्टॉचियोमेट्रिक नंबर. ये 1 by 3 कहाँ से आ गया? ये माइनस हम क्यों लिख रहे हैं? सो दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शंस. दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शंस. दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नथिंग बट द rate of change of extent of the reaction with respect to time at constant temperature. Temperature is very, very important, because you know that there is a very important theory in your course that is called Arrhenius theory, and you know these things. That is called the effect of temperature on the reaction rate. So in your course, let me explain for the course. You have to study rate of the reactions and then methods of the determination of the rate of the reaction and order of reactions. And then there are 2 theories. One theory is the effect of temperature, that is called the Arrhenius equation. And second theory
is called the collision theory. It is in your course also, because for the reaction to take place there must be some collisions. And there is a third theory that is called the absolute reaction rate theory, or the transition theory. But they have mentioned here that non mathematical derivation, मतलब वो आपको ज़्यादा कठिन देना नहीं चाहते हैं. क्या लिखा है? नॉन मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. दैट मीन्स आई विल एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, बट आई विल नॉट डिराइव इट मैथमेटिकल, बिकॉज वी नीड सम पार्टीशन फंक्शन. अब थोड़ा आगे चलते हैं. नाउ इट इज क्लियर दैट हाउ डू आई राइट द रेट फॉर एनीथिंग. ओके, बट there are many types of the reactions. आपके सामने मैं दो रिएक्शन लिखा हूं. एक और मैं लिख सकता हूं एसीटोन, ये सब जानते हैं, एसीटोन CH3 CO CH3 जानते हैं. दिस इज आयोडीन. और मैं लिखा हूं पोटेशियम परसल्फेट के आई, एक ये दो लिखा हूं और ऊपर में एक और लिख दे रहा हूं, उसको नीचे फिर लिख देता हूं CH3 COO. अब ये प्रैक्टिकल अगर आपने ठीक से किए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये पता नहीं आपको कराया गया कि नहीं कराया गया. माई क्वेश्चन, हाउ डू आई राइट द रेट. तो आप ऐसा बोल सकते हो, अभी तो आप जानते हो रेट लिखने का तरीका आपने सीख गए हैं, डिफरेंशियल फॉर्म d/dt ऑफ लाइक दैट. सो इट मे बी रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 CO CH3, मे बी लाइक दैट. दूसरे ऊपर, सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट और वॉट एवर इट इज. So if I just delete there must be some constant, small k, don't write the capital, small k ऐसा लिखा जाता है. This is called, rate never be constant, but it is actually generally we use the rate constant, or sometimes it is called the rate coefficient भी बोलते हैं. Now question is there that is it the rate, number of species whose concentration determine the rate. इसको थोड़ा ये लास्ट, इसके बाद मैं आई विल स्टॉप माई लेक्चर. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन इंटरेक्ट विथ मी. मैं 3 रिएक्शन आपके सामने लिखा हूं. एवरीवेयर देयर आर 2 रिएक्टेंट, reactant 1, reactant 2. Reactant 1, reactant 2, reactant 1, reactant 2 may be catalyst. My next question is that, because now you understand what is rate of the reaction, the extent of the reaction, and that rate is proportional to the concentration, because you have to monitor the concentration of that reactant. ठीक है. अब number of species involved in a chemical reactions. Basically, rate determine. I am not talking about the rate determining step or first step. मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ, मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखा हूँ. यहाँ पे कितना एक मॉलिक्यूल इसका है कि, सो इट इज कॉल्ड दी मॉलिक्यूलरिटी. सो देयर आर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, 1 molecule of methyl acetate, 1 molecule of water, 1 molecule of potassium persulfate, and 2 molecule of whatever it is. So the molecular, trimolecular reactions. But it is not necessary that rate of the reaction depends upon the concentration of only on methyl acetate. It will not depend the concentration of water, because water is large volume. Whereas in some cases, it depends on the potassium persulfate as well as the Ki. In some cases, neither depends on the
एसीटोन नॉर आयोडीन। क्या मतलब है? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? इधर से बताइए, कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं जो अभी बोला हिंदी में समझाइए मेरे को। बताओ भाई, एनीबॉडी? समझाइए ना। मैं फिर क्या मतलब हुआ मेरे को समझाने के इतना देर तक? बताओ, इधर बताओ, आप बताइए। एक्सप्लेन इन हिंदी और इंग्लिश। हाउ डू यू डिटरमाइन द रेट? इट इज इंटरैक्शन, डोंट वरी। आप अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए कोई बात नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं जो बोला हूं उसी से आपसे पूछ रहा हूं। बोलिए बोलिए। हाँ, अब रिएक्टेंट मान लो दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, तो क्या दोनों के ऊपर डिपेंड है क्या? आप कैसे जानेंगे? आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। ये तो आई एम ए टीचर, मैं आपको बोल दिया, आप मेरी बात मान जाएंगे क्या? मैं अभी आपको क्या बताया? 3 रिएक्शन में जानबूझ के लिखा। एक रिएक्शन में मैंने बताया कि रिएक्शन के रेट इज डिटरमाइन ओनली बाय मॉनिटरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट। दूसरा मैंने क्या बताया कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है या वेग है वो पोटेशियम परसल्फेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और पोटेशियम आयोडाइड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और एक मैंने बताया एसीटोन, जो ना एसीटोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना आयोडीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और एक और भी बता सकता हूँ, जो मान लो 3 रिएक्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी। सपोज ए प्लस बी प्लस सी, आई एम राइटिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सो रेट इज डिपेंड्स अपॉन दी के ए बी एंड सी। ये मान लो मैं इसको लिखता हूँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। और एक में क्या हो रहा है? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। So that concept is called, anybody? Which is the most important concept. One concept I have already told you, that is molecularity. हाँ, anybody? सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें रेट अलग अलग टाइप की होते हैं, जैसे कि 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शायद पता लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड, अभी मैं उसका डेफिनेशन नहीं पूछा आपसे ना, मैं अभी आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी एमएससी के स्टूडेंट भी कई बार डेफिनेशन देने में प्रॉब्लम होता है। is sum of the power of the exponential terms of a concentration which must be raised in order to explain the chemical reactions. So that girl is correct, partially correct. That, what is your name? Devika. From where? Kharora means I think Chhattisgarh. Raipur. So she is correct because that concept, which is the most important concept of chemical kinetics, अपने स्कूल में पढ़े, अभी भूल गए होंगे सब, बहुत सारी चीज़ पढ़ रहे हो ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मैं डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मतलब, जैसे इन्होंने मेरे पहले ही बता दिया कि, और मैं जानबूझ के 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखा, इसमें बहुत सारे रिएक्शन होगा। 0, वो लड़की ने बताया 0 ऑर्डर। एक बार बताया फर्स्ट। आप थोड़ा घर में पढ़ के आइए, होमवर्क अगर नहीं करेंगे, मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा आपको, कोई डांटूंगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अपना मर्जी के ऊपर है। हम लोग तो वॉलंटियर आए हैं। यस्टरडे प्रोफेसर आगासे रिक्वेस्टेड मी एंड आई एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज बेसिकली आई एम ए टीचर। उन्होंने बताया, मैं अपने फौज के साथ आ गया आपको कि साहब वहाँ पे केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं है, तो आप आपको मदद करो, आई एम रेडी। तो लेट मी फिनिश। आज की तारीख में मैं केवल आपको फंडामेंटल बताया, मैं कोई डेरिवेशन नहीं कराया मैं आज। तो 2 कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हुआ। नंबर 1, एनी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी स्टडीड with the help of chemical kinetics, number 1. Number 2,
in order to understand the complete chemical transformation, we should know the reaction mechanism. मतलब हम बिना रिएक्शन मैकेनिज्म जाने कैसे करेंगे. थर्ड, reaction mechanism means the different elementary steps. Third, there are two important concepts, that rate of the reaction means the extent of the reaction with respect to time. समय के साथ साथ इसकी concentration को कैसे हम मेजर करें. फोर्थ, दो कंसेप्ट है. एक, ओवरऑल रिएक्शन देख के हम ये बता सकते हैं कि ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ट्राईमोलिकुलर रिएक्शंस हैं, जितने मॉलिक्यूल्स उसमें हैं. बट दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, बिकॉज देयर मे बी ए केस दैट this reaction is not dependent either acetone or iodine. So that is called the zero order reaction. कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें केवल एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कुछ केस में क्या होगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सो माई homework is that define with good example order of reaction. Some of these species concentration terms which must be raised. That means finally ख़त्म करने से पहले मैं आपको ABC से मैं ले आऊँगा, और ये आपको नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा, कल तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, फिर AB में मैं आ गया रेट कांस्टेंट. सो डी बाई डी टी ऑफ A only K 0, because it is not depends on. उड़ा दिया मैं इसको. दूसरा केस, सेकंड केस, डी वाई dt of differential equation K1A, या कई बार हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A0. फिर एक रिएक्शन हमारे पास है A plus B is equal to C. I can write like that. और इन्हें लिख के आप सीधा रेट लिख सकते हो. रेट is equal to K2 A and B. So हम इसको 0 फर्स्ट and second. But bear in mind, you are a very important BSc B.Ed. It is not a school. So my suggestion is that you must write at least 3 examples of each. I am giving 1 or 2 examples. But knowledge कोई complete नहीं है कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा. आप ढूंढिए, search the literature and see the at least example of 0, first, and these are all differential equations. Now I have to, in order to determine the rate constant of first order, 0 order and third order, but आपके कोर्स में थर्ड ऑर्डर नहीं है, कोर्स में नहीं है. कोर्स में केवल है 0, फर्स्ट एंड सेकेंड. आप कोर्स को जरूर देखिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपको क्या पढ़ना है, 0 पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है, सेकेंड पढ़ना है, एंड डेरिवेशंस. हाउ यू डिटरमाइन, हाउ डू, ये तो ऐसे अंदाज में इन्होंने बोल दिया कि ये 0 ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, बट वी हैव टू डिटरमाइन. सो दैट इज एक्सपेरिमेंट. दैट मीन बिकॉज unless until we do some experiment, how do we know that rate is depends on the concentration of the species? So it is experimental procedure. So ये sum of the powers है ना, ये x है, ये मान लो x plus x, तो हम लोग टोटल ऑर्डर लिखेंगे x plus x. तो sum of the powers of the SUM, sum जोड़ना, sum of the powers of the concentration terms which must be raised, or number of species whose concentration determine the rate of reaction. That is called the order of reaction. So I want this very
scientific definition of molecularity and order of reactions. In some cases, it is a bimolecular reactions. There are two molecules, but rate is depends only one species. Sometimes it is called, you all know that it is a pseudo first order reaction. These are all very simple things. I will not explain these pseudo first order as pseudo second order reactions. I will explain the derivation of this zero first order reaction. So that is, today is the first class, and after that, after this fundamental concept, we will study the theories of the reaction rates. And there are two theories. One is Arrhenius, very Arrhenius theory, and collision theory. And you can understand this very, very simple. It is again is a very fundamental BSc courses. And he is a Nobel laureate, you know. In 1903, he was awarded Nobel Prize, Arrhenius. You must know the history of that chemistry, very fantastic chemistry. And they have written that, yes, you have to study the transition state theory. और आप बिल्कुल सोचिए, कोई कठिन नहीं है, बट उन्होंने पहले से लिख दिया नॉन मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. नाउ इफ यू एनीबडी इन दिस क्लास कोई आर्नियस का फॉर्मूला बता सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? एनीबडी? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि आप लोग, हाँ, हाथ उठाया थोड़ा सा, देख, वेरी गुड. ये लड़की अगर बता दिया, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. के इज पहले आपने कॉपी में लिखिए. तरीका होता है कि आप गड़बड़ी मत करिए. आपने प्रयास किया. एनीबडी? अपने कॉपी में लिखो भाई. स्कूल लेवल क्वेश्चन. हाँ हाँ, वेरी गुड. मैं अभी इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी. ये स्कूल का है भाई, स्कूल लेवल केमिस्ट्री. पूरे क्लास को आना चाहिए भाई. आप यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में आप पढ़ने आए हो मेरे क्लास में, तो मैं चाहूँगा कि आप एकदम अलर्ट रहिए. और ये कोई, जब ये लड़की बता सकती है तो एवरीबडी, कोई भी कर सकता है, क्योंकि स्कूल का बात मैं कर रहा हूँ. आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट इज ए. अभी मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे व्हाट इज ये, व्हाट इज दैट. लेकिन इन्होंने सही बताया. आई एम वेरी हैप्पी. अब वो मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे. अब कोलिजन थ्योरी बताइए भाई. ये हो गया आर्नियस इक्वेशन. अब कोलिजन, अब मेरे क्लास में आए हो तो अगर इतना नहीं सिखाऊंगा तो मैं फिर क्या करूंगा? कोलिजन स्कूल में पढ़े हैं क्या? कोलिजन स्कूल में होता है क्या कोलिजन थ्योरी? आई डू नॉट नो. कभी मत भूलो, कोलिजन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ आर्नियस थ्योरी. In spite of tremendous importance of this theory, 1884, 1889, 2025, उस जमाने में तो कुछ नहीं था इंस्ट्रूमेंट. सो कोलिजन इज, कभी मत भूलो, लड़की जो ये बताया, ए को रिप्लेस कर दो, ए को हटा दो, जेड. कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमो मैं समझाऊंगा, बिकॉज देयर मस्ट बी सम इफेक्टिव कोलिजन और केमिकल रिएक्शंस. तो देखो, आप अगर आप मेरे क्लास में अटेंड करते कभी भी, तो आपको एकदम, सर ने तो बताया था कि कोई हमको याद नहीं करना है, ऑल दी थ्योरीज आर इक्वल. और लास्ट कौन सा है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. वो भी कभी मत भूलो. के इज इक्वल टू KBTH exponential minus delta G. This is the beauty of physical chemistry, the understanding. आप कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर आप, if you remember the great theory of Arrhenius, when you increase the temperature and it is related to Maxwell-Boltzmann distribution of molecular velocities, Maxwell
kinetic theory of gases, because there are 50 students, different molecules, there is a collisions. But how many molecules possesses a certain threshold values? That is important. 50 students, there are some active molecules, there are some passive molecules. But passive molecules become active by taking the energy of activation like that. So never forget these things. ये अब आपको अभी पढ़ाएंगे, अभी टाइम लगेगा, एक दिन में तो नहीं होगा. ओ मीटिंग है, मीटिंग फाइनल. ये हो गया आपके क्या हमने क्या इसको जेड से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे क्या इस जेड की जगह हमने इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी एन एच प्लांक कांस्टेंट और यहाँ पे डेल्टा जी से रिप्लेस कर दिया. सो थैंक यू वेरी मच.